So in the previous class, we studied about the solvency ratios and we discussed the four accounting ratios under the category of solvency ratios. I hope you all are getting my voice clearly. Okay. So let us continue with the numerical questions of the same topic, that is solvency ratio. The illustration in front of you, आप लोगों को question clear नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Two states from the following balance sheet of Galaxy Limited compute debt to equity ratio. So if you people remember the formula of debt equity ratio, it was debt upon equity. The formula for the debt equity ratio was debt upon equity, and in debt we included two items, that is uh, long-term borrowings and long-term provisions, and in equity we included what? In equity we included the Shareholders fund. shareholders fund, means share capital and reserves and surplus. So the balance sheet what is given in front of you, here we do have share capital, we do have reserve and surplus. It means these two items combinedly can make the denominator shareholders fund of rupees 9 lakh. After that we have to decide that what items have to be taken from non-current liabilities. So we do have long-term borrowings, we do have the long-term provisions. Again, both the items needs to be taken. So it will be near about 15,57,500 will be the total debt. So just use your pen and paper and calculate, that is debt upon equity as rupees 15 lakh 57,500. You all have to calculate it over your paper by yourself and just tell me the answer. 500 divided by rupees 9 lakh. We have to divide it by rupees 9 lakh. 15 lakh 57,500 has to be divided by rupees 9 lakh. Okay. And in case you get the answer in decimal, that you have to calculate it to the two decimal places, and after that you have to round off it to the two decimal places. You will calculate it to the three decimal places, and then you will round off it to the two decimal places. Just calculate and tell me how much amount So you one, are getting. so 1.73 ratio 1. So by calculating this, we will get 1.73. Okay, 1.73, because we are actually getting 1.730 at the three decimal places. So obviously it will be rounded off to two decimal places if 1.73 is to 1. So this is how you have to apply the formula and calculate various accounting ratios. Now, if you remember, the ideal debt equity ratio is 1.2. I told you the ideal debt equity ratio was 1:2. Sorry, 2:1, not 1:2. Just forgive me. So 2:1. And here we are having 1.73. So what does this imply actually? You have analyzed, you have used the tool. Now what analysis you derive, what observation you will present, because in the examination you will be asked to present your observation. If this firm is having a debt equity ratio of 1.73:1, which is lesser than the ideal debt equity ratio, what does that imply? It implies that the proportion of debt in the total uh, capital, or you can say the total liabilities of the firm, is comparatively lesser than the ideal ratio, and it also implies the more borrowing capacity of the firm.
It means a firm has still the borrowing capacity of 0. It must be 27. It is still having the borrowing capacity of 0.27% of the total capital employed. जो इनका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन 2:1 होना चाहिए, जबकि 1.73:1 है. इट इम्प्लाइज a good position that the firm is still having the borrowing capacity. It can acquire loan from the bank, it can acquire loan from issuing debentures, it can borrow funds from the public deposits and the other instruments of non-current liabilities. It can raise that. So this is how you will present your observation. It is implying a better borrowing capacity, but it cannot issue further shares because it is already having a higher proportion of equity compared to debt. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा ऐसा. ठीक है, इसी के आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे. और फिर से मैं कहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ उनको आप डेली प्रैक्टिस करते जाना. उनके जैसे दूसरे क्वेश्चंस भी आप डेली प्रैक्टिस करते जाना. अगर आप बाद के भरोसे छोड़ रहे हो कि हम तो अपने सेकंड हाफ डे के बाद में इसे वीडियो को देख के समझ लेंगे, तो उस समय आप टॉपिक तो समझ लोगे. जो इस वीडियो में क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्यूशन यहाँ पे है जो अभी हमने किया. सो यू कैन चेक व्हाट यू हैव डन, द कंप्लीट सॉल्यूशन. This debt to equity ratio equals debt upon equity, that is 15,57,500 divided by 9 lakh equals to 1.73:1. Debt equals में क्या क्या आपने लिया वो present है, and what you have included in equity, that is shareholders fund, that is also been included. तो अब ये चीज और एक अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि डायरेक्टली सिर्फ कैलकुलेट करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर फॉर्मूला भी लिखना है. उस फॉर्मूले में आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया वो भी आपको लिखना है. ये सब चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा. ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बीच में आप अपने माइक को इनेबल करके पूछ सकते हैं. और जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आप बाद के भरोसे रहते हैं तो फिर आप अपने क्वेरीज नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि अभी तो जैसे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो नेक्स्ट डे आप मुझे पूछ सकते हो, सर हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और थोड़ा हमें डाउट आ रहा है, आप एक्सप्लेन कर दो, तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा. बाद के भरोसे अगर आप हैं कि बाद में मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन का आपको मौका मिलेगा मुझसे, या आपको है ना कोई रिवीजन का मौका मिलेगा, तो पहले भी मैंने कहा था, मैं तो सिर्फ रिमाइंड कर सकता हूँ कि किसी गलतफहमी में मत रहना, ये सब मौके नहीं मिल पाएंगे. आप लोग साथ के साथ ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएं तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा जी. इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो. फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, मैंने सिखाया था आपको कि डेट टू इक्विटी रेशियो में हमने ऊपर डेट ले लिया था, नीचे इक्विटी ले लिया था. टोटल एसेट टू डेट रेशियो में ऊपर टोटल एसेट ले लेंगे, नीचे डेट ले लेंगे. दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि भाई डेट के लिए अपन को क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस चाहिए. यानी कि हमें 4,50,000 प्लस 50,000, यानी कि डेट का अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 5 लाख रुपीज़ का हो जाएगा. ये तो आई थिंक साफ साफ सबको माइंड में सेट हो गया है, क्लियरली समझ में आ गया है. 5 लाख रुपीज़ का डेट अमाउंट हो जाएगा. बात करें टोटल एसेट की, तो टोटल एसेट मैंने आपको कहा था, टोटल एसेट मीन्स द टोटल ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग टू थिंग्स, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट एंड एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तो ये जो आपको एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दे रखी है, इसको आप देखिए एक बार कि इसने क्या क्या दे रखा है आपको. आपको टेंजिबल एसेट्स दिए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में का नोट नंबर 1 है. नोट नंबर 1 को जब आप देखते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज है, और फिर आपका इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, अदर करंट एसेट्स है. ठीक है, और टोटल ऑफ एसेट्स एट ऑफ बैलेंस शीट है 8,50,000. तो ये सॉल्यूशन आ गया आपका. हमने टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल एसेट अपॉन डेट. और हमने कितना ले लिया टोटल एसेट के लिए, टोटल एसेट के लिए हमने ले लिया 8,50,000.
अपॉन डेट हमने 5 लाख अभी कैलकुलेट किया ही था, फाइनली हमारे पास आ गया 1.70:1 है ना। सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखनी टोटल एसेट में, क्या, एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा फिक्टिशियस एसेट। अगर ये होते हैं तो आपको नहीं लेना है। चलिए थोड़ा सा फिक्टिशियस एसेट को डिस्कस कर लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फिक्टिशियस एसेट में आपका आता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज लॉस ऑफ द ईयर। देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट तो आएगा नहीं शेयर्स का, so loss on issue of debenture, discount on issue of debenture. After that, any other such item, deferred revenue expenditure, this one, advertisement suspense account, ठीक है। जो भी ये है, ये आपके फिक्टिशियस एसेट में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड आपको क्लियरली लिखा हुआ आएगा। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको क्लियरली लिखा हुआ देगा कि दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज जो टोटल ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट था वही हमने इस फॉर्मूले में लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल दे रखा था बैलेंस शीट में एसेट साइड का 8,50,000, वो एज इट इज हमने फॉर्मूले में यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी दिखा रखा है इसने कि टोटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड किया है। तो इसने नॉन करंट एसेट्स लिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स, सब चीज़ ले लिए और 8,50,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। From the following balance sheet of from the following balance sheet of Channel Limited, compute shareholders fund by following liabilities side approach and asset side approach। क्या कहा है इसने? इसने सिंपली आपसे सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए कहा है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने पहले तो आप क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन ने आपसे डिमांड क्या किया है। क्वेश्चन ने आपसे कोई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, क्वेश्चन ने आपसे सिंपली शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए कहा। शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या लेते हैं? शेयर होल्डर्स फंड में हम लेते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस को जब हम ले लेते हैं तो वो हो जाता है आपका शेयर होल्डर फंड। लेकिन इसने साथ में क्या बोल दिया? इसने बोल दिया कि एक तो लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लसेस दोनों को ऐड कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है फिक्टिशियस एसेट, तो हो गया आपका शेयर होल्डर फंड। ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए इसको, मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। लाइबिलिटी साइड अप्रोच का और दूसरा इसने एसेट साइड अप्रोच का, तो क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच का लिख रहा हूँ। आर एंड एस मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस।
मेरे गले खराब होने की वजह से आप लोगों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी, बार बार डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा होगा, सो आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। So this is the formula for the shareholders fund. From the liability side approach, formula is shareholders fund equals to share capital plus reserves and surplus minus fictitious assets, अगर कोई है तो, ठीक है। दूसरा ये बोलता है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच का जो फॉर्मूला रहता है उसमें आप क्या लेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए आप पढ़ पा रहे हैं फॉर्मूले को? Yes, sir. लिखा जाए तो ठीक है। मैं बोल देता हूँ, उसे आप लिख लीजिए। अगर कोई चीज़ थोड़ा क्लियर नज़र ना आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ। एसेट अप्रोच के लिए शेयरहोल्डर्स फंड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब आप कहेंगे सर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट का मतलब तो फिर टोटल एसेट हो गया या टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो गया? नहीं, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स मीन्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट होता है। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो जो आपके पास बचेगा वो शेयर होल्डर्स फंड बचेगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा इसमें से नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन को डाउट है तो पूछ भी सकते हैं।
जी, अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा फॉर्मूला। चलिए, ये जो मैंने आपको लिखा है इसी को अपन चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमने सही लिया या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं शेयरहोल्डर्स फंड अंडर द लायबिलिटी अप्रोच इन्होंने कहा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस और 5 लाख प्लस 4 लाख इक्वल टू 9 लाख कर दिया, काम खत्म हो गया। एसेट अप्रोच में इन्होंने क्या किया, शेयरहोल्डर्स फंड के लिए पहले फिक्स्ड एसेट्स लिए, फिक्स्ड एसेट में इन्होंने वर्किंग कैपिटल ऐड किया है और नॉन करंट लायबिलिटीज को लेस किया है। तो ये भी एक तरीका रह सकता है आपका, मैंने जो लिखा है वो भी एक तरीका आपका रह सकता है, आप चाहें जैसे उसको ले लें। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वो भी एक अप्रोच हमारी होती है जिससे हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से और समझ में आ जाएगा आपको। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुक में पढ़ने से सिर्फ समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को, इसलिए अटेंड करना क्लास ज़रूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा, नॉन करंट एसेट्स, प्लस वर्किंग कैपिटल लिखा है। तो प्लस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हो गया, प्लस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और फिर इसमें से किया है माइनस माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी बिल्कुल क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाएगा, थोड़ा सा आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में आपके सेट हो जाएगा अभी। ठीक है, पहले तो आप स्क्रीन पे देखें, जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है उसको देखिए आप। ठीक है, अब मैंने जो फॉर्मूला आपको बोला था उसको आप याद कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था, शेयरहोल्डर्स फंड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी कि मैंने आपको बोला था प्लस करंट एसेट, उसकी जगह यहाँ पे प्लस हो गया वर्किंग कैपिटल, और मैंने बोला था माइनस करंट लायबिलिटीज, उसकी जगह करंट लायबिलिटीज यहाँ पे माइनस हुआ नहीं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सी ए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो देखें आप, क्या वही फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने लिखा था या नहीं। नॉन करंट एसेट्स में अगर आप वर्किंग कैपिटल को ऐड ना करना चाहें तो आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्किंग कैपिटल ऐड नहीं भी करते हो और उसकी जगह आप करंट एसेट ऐड कर देते हो और करंट लायबिलिटी लेस कर देते हो और नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर देते हो, तो बात तो वही हो गई ना। इसलिए इन्होंने बस इस तरह से ले लिया फॉर्मूला कि नॉन करंट एसेट, अच्छा ये लिखने की फिर जरूरत क्यों थी, इन्होंने सीधा क्यों नहीं बताया, वो इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है,
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन ही नहीं होता है, डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल गिवन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे माइंड में ये क्लियरिटी रहनी चाहिए कि अगर हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है तो हम नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल करके भी और इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सबके माइंड में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कोई कंफ्यूजन है, अगर किसी के माइंड में कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ लीजिए। सर जी सर ये नॉन करंट एसेट में सर वो मतलब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और वो फिक्टिशियस एसेट सर एक्सक्लूडेड है ना? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% करेक्ट है आप। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जब भी मैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट, सॉरी टोटल बैलेंस शीट नहीं, जब भी मैं टोटल एसेट बोलूंगा तो उसका मतलब भी अंडरस्टूड, टोटल एसेट मींस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूडेड। अगर मैं आपको नॉन करंट एसेट बोलता हूँ तो भी अंडरस्टूड है, उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूडेड, वो अंडरस्टूड है। इवन रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोला जाए तो उसमें से फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूडेड माने जाते हैं। हालांकि रिजर्व एंड सरप्लस में ऐसा उसका कोई दिया नहीं है क्लियरिफिकेशन, बट ये अंडरस्टूड। और किसी के माइंड में कंफ्यूजन यहाँ तक का कुछ हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये सारे फार्मूलाज आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि इसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट तो अवेलेबल करवा नहीं पाऊंगा। जब मैं वाइट बोर्ड शेयर करता वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ तो मैं आप लोगों को ग्रुप में स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा देता हूँ। अभी मैंने क्या डायरेक्टली पीडीएफ शेयर कर रखा, तो इसका कोई स्क्रीनशॉट मैं आपको अवेलेबल करवा नहीं पाऊंगा क्लास में, ग्रुप में। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाना सारी चीज़ों को। From the following balance sheet of XYZ Limited, calculate debt to equity ratio, proprietary ratio and total asset to debt ratio। तीन फॉर्मूलाज आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो तो क्लियर है, आपको डेट अपॉन इक्विटी हो जाएगा। डेट के लिए क्या ले लेंगे आप, डेट के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ले लेंगे। इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म प्रोविजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो बस सीधी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक आइटम लोगे 9 लाख, तो हो गया डेट का काम, तो ठीक है। इक्विटी के लिए क्या ले लोगे, शेयर होल्डर फंड ले लोगे। शेयर होल्डर फंड के लिए क्या लेते हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, तो वो कितना हो जाएगा आपका 18 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, वो भी हो गया काम। सीधे से डेट इक्विटी रेशियो तो नज़र भी आ रहा है आप लोगों को कितना कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, 9 लाख अपॉन 18 लाख, तो 9 लाख अपॉन 18 लाख 0.5:1 आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो का और टोटल एसेट टू डेट रेशियो का। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में क्या करेंगे, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, तो डेट तो वही ले लेंगे अपन, कितना 9 लाख, डेट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर बच्चा आपका क्या टोटल एसेट, तो टोटल एसेट के लिए अपन स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। जी, टोटल एसेट में अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो कुछ दी नहीं है, तो अपन ये मान लेते हैं कि जो भी ये चीज़ें सारी ट्रेड वाली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, तो 40 लाख रुपीज़ अपना टोटल एसेट मान लेंगे अपन। और डेट कितना दे रखा था, 9 लाख अपन डेट ले लिया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दो, तो देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या लिख रखा है आपका, डेट अपॉन इक्विटी और 9 लाख अपॉन 18 लाख इक्वल टू 0.5:1। और डेट के लिए क्या लिखा है कि 9 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लेंगे डेट में, और इक्विटी में क्या ले लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ले लेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसके बाद में प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला क्या है अपना, देखिए हो सकता है कल की क्लास नहीं हो पाएगी अपनी। ये आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट के लिए मैंने आपको अभी बताया था 40 लाख लेंगे पूरा, और शेयर होल्डर फंड 18 लाख हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा इसने कैलकुलेट कर रखा है क्या, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट तो 40 लाख लेना ही है, और डेट अपना 9 लाख था। हमेशा याद रखना 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना और उसको 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर देना। किसी के माइंड में किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन को डाउट हो तो बोलिए।
नो सर। नो सर, क्लियर है। चलिए इसको देखिए क्या दिया। Following is the statement of profit and loss of Hindustan Products Limited for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet of the company as at that date. तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो आपको ध्यान देने वाली आइटम्स हैं उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या क्या दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद में आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया, चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड दिया, अदर एक्सपेंसेस दिया, टोटल एक्सपेंस दिया। और अदर एक्सपेंसेस का क्योंकि इसने नोट नंबर बनाया है तो अपन नोट टू अकाउंट में जाके देखेंगे कि भी एक्चुअली इसमें इंक्लूड क्या किया है इसमें। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं अपन। कहाँ पे? नोट टू अकाउंट, नोट नंबर 1 को हम देखेंगे। ये नोट नंबर, ये रहा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज 99,000 माइनस 1,99,000। फिर नोट टू अकाउंट में भी कोई ऐसा ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में दे रखा है। एक मिनट, इसने कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है? क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो नहीं, पर मैं क्विक रेशियो आपको कैलकुलेट करना बता दूंगा। उसके बाद में अपन को शेयर होल्डर फंड दे रखा है, reserves, surpluses given a trade, payables given a trade, other current liabilities given, expenses given है, और ये सब टेंजिबल एसेट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्विक रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए होता है? क्विक रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है हमारा। क्विक एसेट में आप क्या लेते हैं? क्विक एसेट में सारे करंट एसेट लेते हैं एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं देखूं तो आपको क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है करंट एसेट में से, या फिर क्विक एसेट के लिए क्या लेना है आपको? आप ये दो चीज़ें ले लेंगे तो आपका क्विक एसेट बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लो तो 51,000 तो हो गया आपका क्विक एसेट। ठीक है। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विक एसेट में नहीं आते हैं, तो ये 51,000 तो हो गया आपका क्विक एसेट। और करंट लायबिलिटीज के लिए आप क्या लेंगे? करंट लायबिलिटीज के लिए दोनों ले लो, यानी कि 1,30,000। वैसे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी नहीं लेते थे पहले, अब इसमें पता नहीं लिया नहीं लिया। ठीक है, 51,000 अपॉन 1,30,000, और इसको अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। फॉर्मूलाज याद करने के लिए आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस करते करते अपना फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। देखिए आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एंड क्विक एसेट्स में हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ट्रेड रिसीवेबल्स लिया जिसका टोटल आ रहा था 30,000, और करंट लायबिलिटीज में हमने ट्रेड पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लिया जिसका टोटल आ रहा था 1,15,000। और फाइनली ये कैलकुलेट होकर हमारे पास में आ गया 51,000 अपॉन 130 इक्वल्स टू 0.39:1। तो हमारा आइडियल क्विक रेशियो अगर आपको याद हो तो 1:1 आइडियल क्विक रेशियो होता है, और यहाँ पे हमारा जो क्विक रेशियो वो आइडियल से कम है। तो कम है इसका मतलब हमारी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। और इस क्वेश्चन के साथ मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। अगर किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।